اگر ہم نے اپنے شہداء کی قربانیوں کو، تاریخ پاکستان میں جلے ہوئے گھروں کو، آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آنے والے لوگوں کو اسی طرح نظر انداز کرنا تھا تو پھر ہم نے پاکستان حاصل ہی کیوں کیا؟ کہ الیکشن کمیشن جس سے آزاد ہونا چاہیے تھا وہ بھی غلام ہو گیا۔ اگر پاکستان کے ساتھ محبت ہوتی تو آپ لوگ اپنے اداروں کا احترام کرتے۔ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پاک فوج کے بڑے بڑے آفیسروں کے گھروں کے اندر جا کے ہم ہلہ بول دیں، آپ کور کمانڈرز کی رہائش گاہوں کی توڑ پھوڑ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ پاکستان کی سلامتی اور قوم کی عزت کے لیے کام کرنے والے تمام پاکستانیوں کو میرا سلام۔ میں ہوں سردار آفتاب ورک، نظریہ پاکستان کا وکیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ بہادر شاہ ظفر انگریزوں کی قید میں تھا تو بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں ایک غزل لکھی اور اس کا ایک شعر آپ کو سنا رہا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس شعر کو اگر آپ اپنی قومی حیات پہ طاری کریں، اس شعر کو اگر پاکستان کی تخلیق اور آج پاکستان کے آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو پھر سوچ پتہ کس طرف جاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے وطن عزیز کا یہی حال کرنا تھا تو پھر ہم نے یہ وطن حاصل ہی کیوں کیا؟ اگر ہم نے اپنے شہداء کی قربانیوں کو، تاریخ پاکستان میں جلے ہوئے گھروں کو، آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آنے والے لوگوں کو اسی طرح نظر انداز کرنا تھا تو پھر ہم نے پاکستان حاصل ہی کیوں کیا؟ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو نافذ نہیں کرنا تھا، نظریہ پاکستان کی بنا پر پاکستان حاصل کر کے نظریہ پاکستان کو دفن کر دینا تھا تو پھر ہم نے پاکستان حاصل ہی کیوں کیا؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر بھی اپنے اوپر ایک بے خدا معاشرہ اور غلامی کے احساسات طاری رکھنے تھے تو ہم نے پاکستان حاصل کیوں کیا؟ اگر ہم نے پاکستان بنا کر، پاکستان میں آ کر بھی قرارداد مقاصد پر عمل نہیں کرنا تھا تو ہم نے پاکستان حاصل ہی کیوں کیا؟ اگر ہم نے آئین اور قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑانی تھی اور اس طرح سے توہین کرنی تھی اپنے بنائے ہوئے آئین کی اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اس طرح سے پاؤں کے نیچے روندنا تھا تو پھر ہم نے یہ بنائے ہی کیوں؟ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم نے اپنی غرض کے لیے چلنا تھا، اپنی بادشاہت کے لیے چلنا تھا، اپنی انا کو پالنا تھا، وطن کے لیے نہیں سوچنا تھا تو ہم نے ایسی پارلیمنٹ بنائی ہی کیوں؟ اگر ہم نے اپنے اداروں کے تقدس کی حفاظت نہیں کرنی تھی، اگر ہم نے ان کا ادراک نہیں کرنا تھا، اگر ہم نے ان کو قانون کی حدود کے اندر نہیں رکھنا تھا، اگر ہم نے ان کو آئین اور قانون کی حدود کے اندر نہیں رکھنا تھا تو ہم نے پھر اپنے ادارے بنائے ہی کیوں؟ اور اگر ہم نے قربانیاں دے کر اپنے وطن کو مضبوط نہیں کرنا تھا تو پھر ہم نے قربانیاں دی ہی کیوں؟ اگر ہم نے دہشت گردی کے رویے اپنے وجود میں اپنا لینے تھے تو پھر ہم نے 80,000 اپنے قیمتی جانیں دہشت گردی کا خاتمہ کروانے کے لیے قربان کیوں کی؟ یہ سارے کے سارے سوال آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال اپنا جواب کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں ایسے سوالات کا جو سوالات حقیقت ہیں اور جن کے مطابق ہمارا ہر جواب انا پہ مبنی ہوگا، بے معنی ہوگا، غلط ہوگا، مفروضوں پہ مبنی ہوگا، طفل تسلیاں ہوں گی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔
हमने अपने घोंसले बनाकर अपने घोंसले का तिनका तिनका करके फेंक रहे हैं। हम अपने घोंसले में पलने वाले बच्चों को नान नुफ का दाना पानी देने के बजाय हम उनको घोंसले से नीचे फेंक रहे हैं। कभी किसी मुल्क में ऐसा हुआ है जो आपके मुल्क में हो रहा है? कभी किसी मुल्क, कोई मुल्क अपनी तकदीर से इस तरह से खेलता है? कभी पार्लियामान के मेंबरान इस तरह से अपने ही बनाए हुए आइन की तौहीन करते हैं? कभी पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह टकराव करती है? और कभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के इख्तियारात में कहीं दखल दिया है? 75 साल में हमने जिस मकसद के लिए, जिस आज़ादी के लिए, जिस तौकीर के लिए, जिस शान के लिए, जिस इज़्ज़त के लिए और जिस सुकून और खुशहाली के लिए और यहाँ पर जिस खुदा और रसूल का राज कायम करने के लिए, यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान नाफिज करने के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, 75 साल में हम उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मुआशी ग़ुलामी, सियासी ग़ुलामी, समाजी ग़ुलामी, अदारों की ग़ुलामी, अदलिया की ग़ुलामी, समाज की ग़ुलामी, कौन सा पहलू है कौम की ज़िंदगी का जहां पर आपको ग़ुलामी नज़र नहीं आती? औरों का अवतार पहनते हैं हम, औरों के ख्यालात को अपने ऊपर लागू करते हैं, हम अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं। हमने क्या किया है? हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए इसके लीडरों को मारें, कत्ल करें, जनाजे उठाएं उनके। और हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम यहाँ पर भूख से मरें। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमें अपने अदारों का एहतराम भी ना हो। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम यहाँ पर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, पगड़ियाँ उछालेंगे, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करेंगे, फौज का एहतराम नहीं करेंगे, इंतज़ामिया का एहतराम नहीं करेंगे, पुलिस का इंतज़ाम नहीं करेंगे। पाकिस्तान इसलिए बनाया था क्या कि इस बाकी मादा पाकिस्तान पर भी खाकम बदन खाकम बदन खाकम बदन उस वक्त से पहले मुझे मौत आ जाए, या तो इस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे या आप अपने आप को ठीक करेंगे। यहाँ पर एक ही बात सहारा देती है, कुरान पाक की वो आयत, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। अब उसी की रहमत का आसरा है, लेकिन उसकी रहमत का आसरा इसी सूरत में हमारे काम आएगा जब अपनी जबीनों को उसके सामने झुका देंगे। हम बेखुदा मुआशरे में जी रहे हैं, हम बेरसूल मुआशरे में जी रहे हैं, हम बेईमाम मुआशरे में जी रहे हैं। क्या रसालत, क्या तौहीद, रसालत और इमामत का ये पाकिस्तान है? नहीं। आप गिरेबानों में मुंह डालकर देखें। आप अपने जुर्मों को छुपाने के लिए कवानीन बदलते हैं, अपने लिए एनआरओ लेने के लिए अदारों के कानून को बदल कर रख देते हैं, अपने लिए एनआरओ लेने के लिए आप दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशों के तहत आकर अपने मुल्क के अंदर निज़ाम ख़राब करके कुछ का कुछ कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, पार्लियामेंट का नक्शा बदल देते हैं। और अगर आइन के तहत इंतखाब कराना पड़े तो इस खौफ से इंतखाब नहीं कराते कि हार जाएंगे। हार जीत तो होती रहती है। आपने कोई प्रॉब्लम नहीं थे, आज जो इमरजेंसी नाफज है, आज जो फोर्सेस डिप्लॉय हुई हैं, आज जो जगह जगह पर आपके पास इंतजामिया भी मौजूद है, आज अरबों रुपए भी खर्च करने के लिए मौजूद है, आज सारा कुछ मौजूद है ना। ये इलेक्शन के लिए भी मौजूद हो सकता था। ना तो वसाइल की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, ना इंतजाम इंसराम की कमी थी, ना फोर्सेस की कमी थी। लेकिन अफसोस कि इलेक्शन कमीशन जिससे आज़ाद होना चाहिए था वो भी गुलाम हो गया, वो भी पाबंद हो गया, उसकी आज़ादी बेमानी होकर रहेगी, उसमें कहीं आज़ादी नज़र नहीं आई। अफसोस कि जिस अदारे ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, हमने उसी अदारे के घरों पर उठकर हमले कर दिए हैं। हम उसी अदारे के अफराद पर हमले कर दिए हैं। कभी हुआ है ऐसा? मुझे बताएं, कहीं ऐसा होता है कि पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों के घरों के ऑफिसरों में के अंदर चढ़ाई कर दी जाए? कोई किसी को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होती तो आप लोग अपने अदारों का एहतराम करते, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आइन के मुताबिक 2 सूबों में इलेक्शन कराऊंगा, आपने कानून साजियां कर दी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ।
पहली तो बात यह है कि इमरान खान की इस तरह से गिरफ्तारी का जवाज़ को नहीं, मैंने तो उसकी जाने से पहले उसकी वीडियो सुनी, उसने कहा कि अगर कोई मेरा वारंट है मुझे दें, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, ना मेरे गिरफ्तार करने के लिए जमे गफ़ीर लें और ना ही पैसा खर्च करें, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन जब वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के अंदर जाकर बैठ गया तो इस तरह गिरफ्तार किया गया जैसे दुनिया के बहुत बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत की तौहीन होगी, प्रेमिसेस की तौहीन होगी। भले आपके पास वारंट था, जारी किया हुआ था वारंट, लेकिन उसको गिरफ्तार करने का कोई अच्छा अंदाज भी हो सकता था। आपने ऐसा क्यों किया? आपने शीशे तोड़े, बिल्डिंग के अंदर घुसे। ये कभी मुहज़्ज़ब कौमें ऐसा करती हैं, गिरफ्तारियां ऐसे की जाती हैं, घरों को तोड़कर, दीवारों को फुलाकर, दरवाजे तोड़कर, चादर और चारदीवारी को ऐसे पामाल किया जाता है। यह इस्लामी मुआशरा है आपका? दानिशमंदी का तकाजा है, यह है हुब्बुल वतनी का तकाजा, यह है कि आप पाक फौज के बड़े बड़े ऑफिसरों के घरों के अंदर जाके हम हल्ला बोल दें, आप कोर कमांडर्स की रैश गाहों की तोड़फोड़ करें। और अफसोस की बात है कि वहां रोकने वाला कोई नहीं, वहां पे ना पुलिस खड़ी है, ना वहां पे रेंजर खड़ी है जो बलवा करने वालों को रोक दे। हमने जहालत दी हुई आवाम को, हमने खुदगर्जियां दी हुई आवाम को, हमने नफरत पैदा की हुई आवाम में। आवाम के अंदर कौमी यकजहती नहीं है। जब ऐसी सूरत है तो अदारों की हिफाजत करने के लिए बंदे मौजूद होने चाहिए। कैसे GHQ के अंदर लाठियां लेकर चले गए और GHQ का दरवाज़ा तोड़ा? एक बात काबिल मुज़म्मत है, पाक फौज पर हमला काबिल मुज़म्मत है, पाक फौज के ऑफिसर्स पर हमला काबिल मुज़म्मत है, पाक फौज पर यह तनकीद काबिल मुज़म्मत है। आप चाहते हैं कि आप अवाम और फौज के दरमियान लड़ाई करवाएं? आप इसे तुर्की समझते हैं? ये पाकिस्तान है, ये तुर्किया नहीं है, ये उर्दगान नहीं बैठा हुआ, ये उसकी कौम नहीं है, ये पाकिस्तान है जिसके दुश्मन सरहदों के ऊपर बैठे हुए। बाबा कौम ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके हिंदुओं के गुलाम नहीं रहना चाहते। यही था ना नज़रिया पाकिस्तान, यही था ना दो कौमी नज़रिया। आपने खाक उड़ा दी उसको, अपने ही अदारों को मलिया मेट करके। गोलियों से कभी नहीं मामला हल होते, मामला जब भी हल होते हैं टेबल पे बैठकर हल होते हैं, मामला जब भी हल होते हैं दानाई के साथ हल होते हैं। आए एक इमरानी मुआहदा करें, आए सारे मिलकर बैठें, आए तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर आकर बैठ जाएं और पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी रेड लाइन पाकिस्तान के और अपने दरमियान रेड लाइन खींचें। लोगों के और पार्टियों के और अदारों के दरमियान रेड लाइन न खींचें। रेड लाइन पाकिस्तान की सलामती और अवाम के दरमियान खींचे, पाकिस्तान की सलामती सियासतदानों के दरमियान खींचे, पाकिस्तान की सलामती और अदारों के दरमियान खींचे। वो है रेड लाइन, पाकिस्तान को नहीं छूना। अभी हम रेड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान की तबाही की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने वाले, पार्लियामेंट में बैठकर खुदगर्जियों की भेंट चढ़ाने वाले पाकिस्तान को मुर्दाबाद।